मिजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम और वणकम, चाइनीज में नी हाओ और जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abariyako Jambo for viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. that's right. Now we are getting more Swahili speaking viewers Yes, than Chinese. So Chinese, which is yes, fantastic. they are. Which is absolutely fantastic. And by the way, Pradeep ji, the economic survey which has been released today says that India needs to generate at least 80 to 90 lakh jobs, farm jobs annually to be able to meet its targets. I don't know how we're going to do that. We are not able to generate any jobs at all right now. And number two, growth is pegged at about 6.5 to 7% for the fiscal year 24-25, which is somewhat less than the expected 8.5%. Of course, we'll discuss the economic survey later. But the IMF, that means, has more faith than the local economists. Than our chief economic advisor. Yes, because IMF has said 7% growth. That is what they see, and India is the highest, they say. India is the go-getter, and India is going to lead the highest growth in the entire world, I think, followed by and far behind the other countries. No, because the chief economic advisor, V. Ananta Nageswaran, said that the Indian economy is set to grow anywhere between 6.5 to 7%, and has expressed confidence that the 7% growth target set in the economic survey 23-24 will be met. That's what he says. So I hope that actually happens. So everybody comes at 7%. Yeah, around 7%, which is fine. I mean, but the only thing is that the base year is to be moved to 2024 from 2012, which means a very high growth rate. Because the point is, if you remember, we had a we had huge growth, almost 8 to 9%, 9.5 to 10% in 2012. 9.6, sir, 9.6 to 9.7 was 2009, 10. Yes. And then from there it slipped down to 4.7. So by the time it reached 2013, we were at 4.7. We were at 4.75% at that Yes. time. Now, according to Dr. Subramanian Swamy, the actual growth rate of the GDP is somewhere in the region of 3.5 to 4%. That's what he says. He says all these figures, they are cooked up figures and they are not real. That's what he says. Now, we can, of course, we're trying to get Dr. Subramanian Swamy on the show. I'm reasonably certain we'll be able to get him. And I would love to know what he thinks and why does he think what he thinks. But in any event, that's for a later date. We'll talk about that as we go along. Right now, we've got a very, very important guest with us indeed. We have our old friend, Mr. Mehmood Deshmukh. Mehmood Deshmukh साहब आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर यानी जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, वो अब तक जेल में हैं। मनीष सिसोदिया साहब 2 साल से जेल में हैं। सत्येंद्र जैन साहब को 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में। और प्रदीप जी, विभव कुमार साहब, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने थप्पड़ मारा स्वाति मालीवाल को, अब तक जेल में है। तो प्रदीप जी, आप खुद लॉयर हैं, आप खुद वकील हैं, तो एडवोकेट साहब ये बताइए कि थप्पड़ मारने के लिए इतनी देर तक आदमी को बेल नहीं मिलती क्या? मतलब क्या है? It looks like eternal detention here. It is continuous eternal detention. Now, this is when we say the misuse of law, and nobody can deny it, because ये normal 3-4 दिन में उनको बेल मिलना चाहिए था, अब महीने हो गए, and he's still there. रेप केस में बेल मिल जाता है, मर्डर केस में बेल मिल जाता है। अभी वो तेनी साहब के जो बेटे हैं जिन्होंने 4 किसान मार दिए थे, वो जो यूपी में जो कांड हुआ था, yes. उनको बेल मिल गई है। Yes. और अरविंद केजरीवाल जी को अभी तक बेल नहीं मिली है। लेट्स गो अक्रॉस टू महमूद देशमुख साहब। महमूद देशमुख साहब नमस्कार। नमस्कार। महमूद देशमुख साहब जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार सर। तो सर, वो जो मंत्री जी के जो साहबजादे हैं जिन्होंने को 3 या 4 किसान कुचल दिए थे अपनी जीप के नीचे, उनको आज बेल मिल गई, जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल जी को अभी तक जमानत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया साहब को अभी तक जमानत नहीं मिली है। सत्येंद्र जैन को अभी तक जमानत नहीं मिली है। और तो और छोड़िए, विभव कुमार साहब जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं या पीएस हैं अरविंद केजरीवाल जी के, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को थप्पड़ मारा। ऐसा स्वाति मालीवाल जी ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की या कुछ और करी।
उनको भी जमानत नहीं मिल रही है, थप्पड़ के लिए भी जमानत नहीं मिल रही है। सर ये हो क्या रहा है, कुछ जरा बताएं, इसमें जरा रोशनी डालें, मेरी जरा समझ के बारे क्या है ये सर? साहब, बजाज साहब जी अगर आप जैसे पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट अगर ये कहेंगे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, जी तो फिर मतलब हैरानी की बात होगी। आप भी समझ सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, नाम के लिए लोकतंत्र की बात चल रही है, तानाशाही है, हुकुमशाही है। और ठीक है, 2 टर्म हुआ, तीसरे टर्म में आए, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, ये वही कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। लेकिन क्या करोगे, सत्ता में ये बैठे हुए हैं, होम डिपार्टमेंट इनके पास है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, बार बार मैंने यही कहा होगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये अरविंद केजरीवाल जी से डरे हुए लोग हैं जी। ये किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और उनके लोगों को ये उलझाए रखना चाहते हैं, झूठे केसों में मतलब फंसा के रखना चाहते हैं, ताकि मतलब आम आदमी पार्टी का मतलब काम जो है नई लोगों के बीच नहीं जाए, आम आदमी लोगों के बीच में और ज्यादा न पड़े, ये इनकी कोशिश है। और इसीलिए ये जानबूझ के सब कर रहे हैं। जैसे थप्पड़ की बात आपने कहा, तो आपको बताऊं, थप्पड़ ऐसे कितने हो रहे हैं केसेस, क्या पुलिस सब पे कार्रवाई करती है? क्या नहीं करती। तो सिर्फ ये जानबूझ के एक बदले की भावना से, मैं समझता हूँ ये आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ में बदले की भावना से मतलब केंद्र सरकार काम कर रही है। और इनका मकसद एक ही यही है कि आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से ये खत्म करें, डिसॉल्व कर देवे, खत्म कर देवे। लेकिन ये नामुमकिन है, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। लेकिन जो आशीष मिश्रा जी हैं, लखीमपुर खीरी वाला जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको बेल ग्रांट कर दी है। उनका भैया कोई बात नहीं, जाइए। सर मैं एक बात, और उसके ऊपर मैं वही कह रहा हूँ ना, आज जो आर्ग्यूमेंट यूज की गई है, पूरी बात सुनने सर, जो आर्ग्यूमेंट यूज की गई है वो ये है कि केस में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, केस आगे बढ़ा नहीं है। तो वही आर्ग्यूमेंट तो यूज होती है फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के केस में भी सुनवाई नहीं हुई है। नहीं, सुनवाई नहीं, केस आगे बढ़ा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं बढ़ी, आगे इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं ऐसा है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का मसला हो, मनीष सिसोदिया जी का मसला हो या सत्येंद्र जैन जी का मसला हो, इनमें इन्होंने जो भी 2 साल में इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें इन्हें कोई चीज हासिल नहीं हुई है, 1 रुपए की चीज भी इनको हासिल नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद मतलब ये फंसाए हुए रखे हैं। तो अब कैसा, हाँ बोलिए, जानबूझ के कर रहे हैं ना। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो रहेगा, वो कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, वो बेल मिल जाएगी, वो साफ सुथरा हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला हर शख्स जो है वो किसी भी पार्टी का होगा, जो उनके खिलाफ जो बोलेगा वो या तो देशद्रोही है या तो भ्रष्टाचारी है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने देशद्रोही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, क्या आम आदमी पार्टी के वजह से दिल्ली इज बीइंग स्टार्व्ड ऑफ फंड्स। आज सुनीता केजरीवाल जी ने हाईलाइट किया, आम आदमी पार्टी ने हाईलाइट किया कि दिल्ली में बिल्कुल 0 अलॉटमेंट ऑफ फंड्स है, सेंट्रल फंड 0 अलॉटमेंट। दिल्ली कंट्रीब्यूट्स आपके हिसाब से, आम आदमी पार्टी के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2,32,000 crores एनुअली टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और रिटर्न में जीरो फंड एलोकेशन फॉर दिल्ली। मुंबई का उन्होंने दिखे 5 लाख करोड़ यहां से जाता है, महाराष्ट्र को 54,000 करोड़ मिलता है, बैंगलोर 2 लाख करोड़ सेंट्रल ट्रेजरी में जाता है, उनको 33,000 करोड़ मिलता है, दिल्ली को जीरो फंड एलोकेशन। क्या पूरा दिल्ली सफर होने वाला है? फुल दिल्ली इज गोइंग टू सफर बिकॉज आपने केजरीवाल को चुना। क्या हो रहा है? देखिए ये सच्चाई है, लेकिन आने वाले 2025 के चुनाव में वहां की जनता जो है इसका जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को, है ना। जो वहां की देखिए ये जनता के मतलब जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भी फंड्स अगर आता तो जनता के हित में उसका यूटिलाइज होने वाला था। अगर ये फंड रोक रहे हैं तो ये जनता के मतलब इससे खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जनता को जो सुविधा मिलने वाली है, जो फैसिलिटीज मिलने वाली है,
उससे उनको वंचित रख रहे हैं। तो ये दिल्ली वासियों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के साथ में अन्याय सिर्फ नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली के मतलब वहां की जनता के साथ में ये भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, आप समझे। और उसका जवाब आने वाले कल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले 2025 में जो फिर चुनाव होंगे, उसमें दिल्ली की जनता इनको खुद जवाब दे देगी। पिछले 2 साल से जीरो, पिछले 2 साल से आपको जीरो मिल रहा है, कुछ फंड्स नहीं मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2 साल से पहले एटलीस्ट 325 करोड़ आपको मिलता था, 325 करोड़। तब भी अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ और तालिबान को 200 करोड़, यानी अफगानिस्तान में तालिबान को 200 करोड़ सरकार की तरफ से जाता था और दिल्ली को 325 करोड़ मिलता था। अब वो 325 करोड़ भी नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है पिछले 2 साल से। तो तालिबान को ज्यादा मिलता है आपसे। अब इसका जवाब तो मतलब केंद्र सरकार जो दे सकती है आपको, तालिबान को ये क्यों दे रहे थे, तालिबान इनके कौन से रिश्तेदार लग रहे थे, पिछले बजट में दिया, वही जवाब दे सकते हैं। पिछले बजट में दिया, एलोकेट किया 200 करोड़। और मैं वो वही जो कह रहा हूं 325 करोड़ की बात है, तालिबान- जो प्रदीप जी ने अभी 325 करोड़ की बात करी ना, वो 1996 की एलोकेशन है कि दिल्ली को 325 करोड़ मिलना चाहिए। अरे 1996 से अभी तक कितने साल हो गए यार, कितनी बड़ी हो गई, अभी तक सिर्फ 325 करोड़ का अटके हो, और अब तो वो भी नहीं दिए, पिछले 2 साल से वो भी नहीं, और अब तो वो भी नहीं दे। बजाज साहब देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप बदले की भावना से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के सामने उनसे बदले की भावना रखते हुए आप दिल्ली की जनता की भावनाओं से खेल रहे हो। दिल्ली की जो जनता है, उनको जो उनके साथ में जो मतलब न्याय होना चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनको जो बेसिक एमिनिटीज मिलनी चाहिए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होना चाहिए, उस पर रुकावट डाल रहे हो। तो आप दिल्ली की जनता को तकलीफ दे रहे हो। लेकिन महमूद देशमुख साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, प्रदीप जी भी सहमत है, सब लोग सहमत होंगे। लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीट उठा करके बीजेपी को दे दी। ये क्या है, ये करिश्मा कैसे हो गया, ये तो बताओ। 7 सीटें उधर चली गई बीजेपी के पास। सर देखिए, ऐसा है ना, ऐसा है, सिर्फ अब दिल्ली की बात आप करेंगे, वो तो 400 का नारा था, 240 पे निपट गए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो कहते थे हम तो 400 के पार आने वाले हैं, तो 240 पे निपट गए। जनता है, जनता को जो उचित लगा, जनता का जो भी जनता का मैंडेट आया वो हमें कबूल है, हम उसमें नहीं गिरना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको देखिए, अगर आपको 7 का 7 सीट मिली है, उसके बावजूद अगर आप दिल्ली की जनता पे अगर जुल्म कर रहे हो, दिल्ली की जनता पे अगर अत्याचार कर रहे हो, उनको मिलने वाला जो पैसा है वो अगर रोक रहे हो, तो मैं समझता हूँ फिर वो दिल्ली की जनता ने सोचने की जरूरत है कि हमने गलत लोगों को चुन के दिया है, हमारा जो डिसीजन है वो गलत है, और ये जल्द दिल्ली की जनता की समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले विधानसभा में दिल्ली की जनता इनको इनकी जगह दिखा देगी। फिर चौथी बार दिल्ली के अंदर मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और महाराष्ट्र में यहां फिर तकलीफ है, आपने कंटिन्यूस महाविकास आघाड़ी के साथ ये मोनोपोली को फाइट करने का कोशिश किया। मोनोपोली अडानी अंबानी का जो मोनोपोली है, आपने बार बार हाईलाइट कर दिया कि एयरपोर्ट लैंड, डेयरी डेवलपमेंट लैंड, धारावी प्रोजेक्ट, ये सब आपने मोनोपोलाइज कर दिया, 1-2 आदमी को दे रहे हैं। और यहाँ पर अडानी सबसे बड़ा फेवरेट है, एयरपोर्ट अडानी, एयरपोर्ट लैंड अडानी, धारावी प्रोजेक्ट अडानी, डेयरी डेवलपमेंट लैंड अडानी। आप उद्धव ठाकरे जी खुल के सामने आए, उद्धव जी कहा कि मैं इसको स्क्रैप करूंगा, वी विल स्क्रैप द धारावी प्रोजेक्ट को हम स्क्रैप करेंगे, बिकॉज ये मोनोपोली देश विरोधी, देश के हित में नहीं है, महाराष्ट्र के हित में नहीं है, मुंबई के हित में नहीं है। तो आप कंसोलिडेट कर रहे हैं मोनोपोली, तो आगे लड़ाई बहुत जबरदस्त है। लड़ाई जारी है। जो मोनोपोली है अडानी अंबानी का, आप विरोध कर रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि हम इसको कैंसिल कर देंगे, धारावी प्रोजेक्ट कैंसिल होगा, एनवीए सरकार अक्टूबर में आएगा एंड वी विल कैंसिल द प्रोजेक्ट, स्ट्राइक ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या अभी लोगों को तकलीफ हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, लोगों को घर नहीं मिल रहा है, धारावी प्रोजेक्ट में लोगों को घर नहीं मिल रहा है, लोगों को बाहर शिफ्ट किया जा रहा है,
एरिया से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, धारावी में रहने वाले जा रहे हैं, रह रहे मुलुंड में भेजेंगे, रेलवे लैंड में भेज देंगे। ये उद्धव जी ने कहा, महायुति ने कहा, ये महाविकास आघाड़ी ने कहा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। महमूद देशमुख जी, आप लड़ने वाले हो। जी जी, ये बात सही है। मैं इस बात का स्वागत करूंगा अगर उद्धव जी ने जो कहा है कि भाई हम उसको स्क्रैप करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। बांद्रा ईस्ट विधानसभा के अंदर भारत नगर एक इलाका है, भारत नगर में भी अदानी के लोग बैठे हुए हैं, वहां पे भी लोगों पे जुल्म चालू है। और भारत नगर में बाजू में संत ज्ञानेश्वर नगर है, वहां पे भी अभी जिस लास्ट टाइम में भी मैंने आपसे कहा था कि आरसी ग्रुप और जो शिव इंफ्रा एलएलपी जो बताया, शिव इंफ्रा रिवर वॉक एलएलपी है ना, जो शाहिद बलवा, डीबी रियल्टी और शाहिद बलवा, एक शाहिद बलवा वो बंदा डीबी रियल्टी वाला जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो गई है ना, वो अभी इस नाम से मतलब यहाँ पे उतरा हुआ है, जिसके पीछे लोग कहते हैं अदानी है। तो मैं तो कहता हूं कि उद्धव साहब, धारावी की लड़ाई तो ठीक है, लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि आज संत ज्ञानेश्वर नगर की जनता जो है, आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह से मैं वहां पे संत ज्ञानेश्वर नगर में था, वहां पे जबरदस्ती जबरन लोगों से मतलब सर्वे कराने की बात की जा रही है। ये सारे के अधिकारी आके कहते हैं भाई हमको ऊपर से प्रेशर है, हम सर्वे कराएंगे। मैंने कहा कि अगर लोग आपके साथ में नहीं है, लोग अगर आपका सर्वे कराना नहीं चाहते हैं, आप जबरदस्ती क्यों सर्वे कराना चाहते हो? बोले नहीं, कुछ लोग चाहते हैं, मतलब जो लोग चाहते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती सर्वे मत कराइए। मतलब ये क्या चल रहा है इस मुंबई शहर में? मतलब जंगल राज, आज यहाँ पे बिल्डर माफिया का राज चल रहा है मुंबई शहर के अंदर। अगर आज देखेंगे, ये जो सरकार बैठी है महाविकास में महाराष्ट्र के अंदर जो है, जो शिंदे सरकार जो है, आघाड़ी सरकार जो बैठी है ना, ये एनडीए की जो सरकार बैठी है, इनके राज के अंदर आज शिंदे साहब या अजीत पवार साहब होंगे या फडणवीस जी हो, इनके राज्य में आज यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है पूरे। तो मैं समझता हूँ पहले वो यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। संत ज्ञानेश्वर नगर की जनता जो है उनके बगल में है, आज वो बेघर होने का समय आ रहा है। आपने शाहिद बलवा का नाम लिया, शाहिद बलवा पहले डीबी रियल्टी में थे, अब शिव इंफ्रा कंपनी फ्रंट। आपका कहना है ये शिव इंफ्रा कंपनी एक फ्रंट कंपनी है, ये पीछे से कोई और लोग है? उसका डायरेक्टर नबील पटेल है, आप चेक कर सकते हैं। शिव इंफ्रा रिवर वॉक एलएलपी का अगर डायरेक्टर है, ये भी हाल फिलहाल में इन्होंने एलएलपी कंपनी बनाई है, नबील पटेल उनका डायरेक्टर है, जो शाहिद बलवा के साथ में है पार्टनर। क्लियर कट है। तो मतलब ये मतलब और आपका कहना है कि और इनके पीछे अडानी है, आपका कहना है कि लॉन्ग टर्म द बिगर फेस बिहाइंड दिस इज अडानी है। बिल्कुल सही। तो वहां पर हो क्या रहा है सर, बताएं। संत ज्ञानेश्वर नगर में क्या हो रहा है सर? लोगों ने कंसेंट दिया नहीं है। मैंने कहा ना कि लोगों ने कंसेंट नहीं दिया है, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, लोगों ने कोई कंसेंट नहीं दिया, वहां पे लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया है उनसे। जबरदस्ती मतलब अगर कुछ लोग वहां पे, कुछ ऐसी सोसाइटी के जो दलाल लोग हैं वो उनसे जाके मिले हैं, और कुछ नेता भी इसमें शामिल है। ये दुर्भाग्य की बात है। अब जनता किसके पास जाए? अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग किसके पास जाएंगे? तो मतलब लोकल लीडर्स जो हैं वहां के, लोकल इलेक्टेड लीडर्स जो हैं, जो चुन के आए हैं, नेता जो हैं वहां के, वो बिल्डर के साथ हैं। आपका कहने का मतलब ये हुआ? देखिए ना, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के लोग कह रहे हैं, ये लोगों का कहना है। ये लोगों का वहां के कहना है कि 4 दिन पहले लोग कहते हैं वहां पे कि भाई हम आपके साथ हैं, 4 दिन बाद में बिल्डर के साथ में जाके हार फूल पहन लेते हैं जी। हाँ, इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब कहीं ना कहीं आपके भी हाथ गीले हो गए। तो कहने का मतलब महमूद साहब, मैं मुझे जरा समझने दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके साथ भरत नगर में आए थे, हम लोगों ने शो किया था आपके साथ। ये संत ज्ञानेश्वर नगर उसके साथ लग गई, जहां तक मैं जानता हूँ। तो आप बाजू में, ना लेके इस तरफ बाजू में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो डील ये बिल्डर दे रहे हैं, ये जो बिल्डर जनाब हैं, आप कहते हैं शायद बलवा साहब की जो कंपनी है, तो ये जो डील दे रहे हैं वो लोगों को मान्य नहीं है। क्या बिल्डर ने कोई ऑफर दिया है लोगों को,
या नहीं दिया है, या सिर्फ कहा है कि भैया हम लोग आ गए हैं खाली करो? क्या हो रहा है वहां? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, संत ज्ञानेश्वर नगर के अंदर टोटल 32 कमेटियां हैं। 32 कमेटी, अगर किसी डेवलपर को अगर वहां पे काम करना है तो उसको हर सोसाइटी से इंडिविजुअली मतलब एग्रीमेंट करना चाहिए। इंडिविजुअली मतलब जीबीआर लेता है, जनरल बॉडी रिजोल्यूशन लेके वहां पे मतलब एक एजीएम जीबीआर रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट करना होता है। और वहां पे बात ऐसी है, ये फ्रेश प्रोजेक्ट नहीं है, उसके पहले वहां पे कई डेवलपर्स थे जो वहां पे जो काम नहीं करने की वजह से मतलब 13(2) के तहत, एसआरए का जो नियम है 13(2) उसके तहत मतलब उनको वहां से निकाल दिया गया। तो जिस प्रोजेक्ट में 13(2) का एक्शन होता है एसआरए की तरफ से, उसमें अगर रीअपॉइंट अगर किसी डेवलपर का करना होता है तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये काम होता है। जब भी आप जीबीआर लगाएंगे तो एआर खुद मौजूद होता है या तो एआर ऑफिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है, उसके मौजूदगी में ही अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पे वहां पे पहली बात तो 32 सोसाइटी को साथ में नहीं, वहां पे कुछ सेक्टर बनाए गए, 7 सेक्टर बनाए गए। 7 सेक्टर ये गैर कानूनी तौर पे है। अभी भी मैंने मतलब एसआरए का एक ऑफिसर आया था, मैंने उससे भी यही कहा कि एसआरए के नियम में सेक्टर ग्रुप होता है क्या, आप मुझे बताइए ना। बोले 7 ग्रुप बनाए हैं हमने। तो बोला 7 ग्रुप क्या हिसाब से बनाए हैं और 7 ग्रुप के हिसाब से काम होता है क्या एसआरए में? बोले नहीं होता है ना। तो 7 ग्रुप बना के चंद लोगों को आप जमा किए, झूठे साइन लिए गए लोगों से, और कुछ लोगों को कंसर्न एग्रीमेंट बना के दिया गया है ना। तो और उसमें लिखा गया है एग्रीमेंट के अंदर कि भाई हम आपको कहीं भी रूम दे सकते हैं। कहीं भी का मतलब क्या हुआ, जबकि एसआरए का नियम कहता है कि या तो उसी जगह पे आप उनका मतलब पुनर्वसन कीजिए, या तो फिर 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में उनका पुनर्वसन होना चाहिए। यहाँ पे कहा जाता है कि हम कहीं भी देंगे। तो मैं समझता हूँ सिमिलर केस है ये धारावी का। जैसे धारावी के अंदर धारावी के लोगों का पुनर्वसन वहां पे नहीं होगा, उनको उठा के कांजूर मार्ग में, बुलून में, कहाँ डाला जाएगा। उसी तरीके से मैं समझता हूं कि संत ज्ञानेश्वर नगर की लोगों को भी उठा के कहीं बाहर फेंका जाएगा। और ये जब बातें हुई तो जब अभी देखिए आपने फोटो दिखाए हैं, ये सब नेता उसमें मौजूद रहे हैं। ये कोई सर्वसाधारण सभा बोला नहीं, जब बताया है सर्वसाधारण सभा। अब मुझे आप बताइए इसमें सर्वसाधारण सभा क्या मतलब निकलता है? पब्लिक सब पूरी पब्लिक वहां पे नहीं गई थी। ये चंद लोग हैं जिन्होंने जो पैसे पे बिक गए, और इनको लेके वो प्रोजेक्ट मतलब प्रपोजल सबमिशन होता है। कल तक वहीं पे यही संत ज्ञानेश्वर नगर में एसआरए कह रही थी कि भाई वहां पे कोई भी प्रपोजल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बैंड्रा स्मार्ट बैंड्रा सिटी का मतलब बैंड्रा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया हुआ है और कोरियन फंडिंग से यहाँ पे बैंड्रा स्मार्ट सिटी बनने वाली है। इसीलिए हमको ऐसा बोला गया है कि भाई यहाँ पे किसी को भी एलओआई इशू मत करो। वो लेटर है मेरे पास। और उसके बाद में ऐसी क्या बात हो जाती है, डीबी रियल्टी हो, शाहिद बलवा हो या आरसी ग्रुप है, ये क्या सरकार के दामाद लगते हैं जो इनको आप झट से प्रोजेक्ट दे देते हो? और चंद नेता लोग दलाली कर रहे हैं। आरसी ग्रुप क्या बोला आपने? आरसी ग्रुप ये क्या नया चीज है? आरसी ग्रुप नहीं, आरसी ग्रुप ये आरसी ग्रुप एक है जिसका डायरेक्टर पृथ्वी चौहान, लेकिन अभी फ्रंट में जो है वो नबील पटेल चल रहा है। ये जो शिव इंफ्रा का जो डायरेक्टर है वो नबील पटेल है, जो शाहिद बलवा का भी बंदा है। तो ये काम आरसी ग्रुप को दिया है या शिव इंफ्रा को? जो अरे सर, आरसी ग्रुप का ऑफिस यूज कर रहे हैं। ये जो अगर शिव इंफ्रा का आप एड्रेस चेक करेंगे तो कुर्ला का आरसी ग्रुप का ऑफिस का एड्रेस मिलेगा। ओके, हाँ। तो मेरा कहना है कि ये जो बैंड्रा स्मार्ट सिटी, वो बैंड्रा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी है या बैंड्रा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के ये अंतर्गत ये सब काम हो रहा है? कैसे क्या दिख रहा है आपको? यही तो मैं कह रहा हूं ना, अगर ये बैंड्रा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम हो रहा है तो लोगों का पुनर्वसन कहां होगा, ये गवर्नमेंट ने सामने आके बताना चाहिए। फिर शाहिद बलवा ये शिव इंफ्रा कर रही है क्या? ये कल 2023 में से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ये किस तरीके से काम करेगी? ये लोगों को कहां घर देगी? इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और आज एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पब्लिक ओपोज कर रही है। कम से कम 1000-1500 लोग बाहर निकले घरों से अपने। लोग सामने से कहते हैं कि भाई हमें अपने घर का सर्वे नहीं कराना है, लेकिन एसआरए के अधिकारी कहते नहीं हम सर्वे करेंगे। अरे भाई जबरदस्ती है। ये फोटो में अनिल परब दिख रहा है, ये फोटो में जीशान सिद्दीकी दिख रहा है। अनिल परब भी एमएलए एमएलसी है और क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, रहते भी इस क्षेत्र में है। जीशान सिद्दीकी एमएलए इस क्षेत्र का। तो इनके तरफ से क्या आश्वासन लोगों को मिला है? इन सिटू
आपको रिहाब करेंगे या यहां से बाहर आपको फेंका जाएगा? इनके तरफ से क्या आश्वासन है? अरे सर ऐसा है, देखिए इनके तरफ से अगर आश्वासन मिला होता, जो मेरी जानकारी है, लोग ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अगर इन्होंने, मैं कहता हूं ना, अगर लोगों ने, अगर इन्होंने अगर ये लोगों का भला चाहते हैं तो आज लोगों के बीच में ये आना चाहिए था। वहां पे तो लोग विरोध कर रहे हैं इनका, वो ये बोलते हैं हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। हमने ऐसा कहा, ये नहीं कहा था। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा यहाँ ही पुनर्वसन होवे, और हमें न तो पेपर दिया जा रहा है, न कुछ बताया जा रहा है, न विश्वास दिया जा रहा है। आपके पास कोई एलओआई का कॉपी है कि जो शिव इंफ्रा को अगर एसआरए ने प्रोजेक्ट दिया है, या कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट? अभी एलओआई नहीं निकला है। देखिए कैसा है, अभी तो सर्वे की बात है, अभी प्रोजेक्ट उसका एक्सेप्ट हुआ है। शिव इंफ्रा का प्रोजेक्ट है ना, एसआरए में एक्सेप्ट किया है एसआरए ने। अब उसके बाद में अभी बायोमेट्रिक सर्वे होगा। बायोमेट्रिक सर्वे के अंदर एनेक्चर 2 बनेगा, पात्र अपात्र करेंगे और फिर ये लोगों को बाहर कर देंगे। एनेक्चर किए बगैर किसी को भी मतलब यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। ये जबरन, इसीलिए तो एनेक्चर के ऊपर, ये जो सर्वे के ऊपर जोर दे रहे हैं कि बायोमेट्रिक सर्वे करवा लो, बाद में फिर उठा के बाहर फेंका जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ महमूद देशमुख साहब, जबकि सारे सर्वेक्षण जो अभी तक आए हैं वो इसका संकेत देते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है महाराष्ट्र में। क्या यही एक वजह है कि अनिल परब साहब भी वहां पर दिख रहे हैं, ताकि बिल्डर साहब जो भी हैं उनको ये आश्वासन हो जाए कि भले जिस मर्जी की सरकार आए आपका प्रोजेक्ट चलेगा? एक बात कहना चाहूंगा बजाज साहब, सरकार प्लीज। किसी की भी बने, देखिए सरकार किसी की भी बने, मैं जनता के साथ में खड़ा रहूंगा, और जनता की अदालत बड़ी अदालत है। आने वाले कल जनता उनको अपनी जगह दिखा देगी, जिन्होंने जनता के साथ में विश्वासघात किया है। और सरकार बन गई तो क्या हुआ, देखेंगे ना आने वाली सरकार। ऐसा तो है नहीं कि है 2 दिन 4 दिन में 8 दिन में काम हो जाएगा, और इसके बाद में कोर्ट है ये। अगर सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। मुझे जरा सा आश्चर्य हो रहा है कि अनिल परब साहब वहां पर क्या कर रहे हैं, वो जरा बताएं। ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, पूछिए। वो ज्यादातर इंटरव्यू देते नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि अनिल परब साहब आप क्या कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि तो वही कह रहा, जो जैसा आप बता रहे हैं इसके पीछे जो शख्सियत है उसके खिलाफ तो परसों ही उद्धव ठाकरे जी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा है कि मैं मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने दूंगा, धारावी प्रोजेक्ट जो है वो हम कैंसिल करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ में जो बाकी चीजें भी जो अडानी जी को दी गई हैं, जैसे मुलुंद की जमीन है, बाकी और रेलवे की भी जो जमीन है जिसकी डिमांड उन्होंने करी है, वो सब हम कैंसिल करेंगे, ऐसा उद्धव जी ने कहा है। तो अनिल परब साहब तो उद्धव जी के साथ हैं, फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से उद्धव ठाकरे साहब से अपील कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे साहब इसका संज्ञान ले जी कि भाई अपने घर में ही क्या हो रहा है, देखिए। दुरुस्त बात। और फिर सवाल ये है, वो देखिए अदानी हो, शाहिद बलवा हो, आरती ग्रुप हो, शिव इंफ्रा हो, कोई भी हो, है ना, लोगों की मर्जी के बगैर अगर कोई कंसर्न एग्रीमेंट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। सर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, और अगर यहाँ पे जबरदस्ती अगर किसी का, एक गरीब आदमी है जिसकी पूरी जिंदगी की पूंजी होती है, एक झोपड़ा मतलब उसकी पूरी जिंदगी की पूंजी होती है, और उसको बगैर विश्वास में लिया आप उसको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे ये फोटो में, वो महिलाएं सुबह से लेके भूखी प्यासी औरतें वहां पे रास्ते पे खड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे। बायोमेट्रिक सर्वे से आपको क्या डर है, या पहले क्या कंसेंट होता है उसके बाद बायोमेट्रिक होता है, या बाय सर्वे पहले होता है उसके बाद कंसेंट होता है, ये क्या प्रोसीजर क्या है? देखिए ऐसा है ना प्रदीप जी, सवाल बायोमेट्रिक से हमको टेंशन नहीं है, ना तो जनता को टेंशन नहीं है। सवाल है ये विश्वास का। जो भी डेवलपमेंट के विरोध में जनता नहीं है, वहां की जनता भी डेवलपमेंट चाहती है, वहां की जनता भी विकास चाहती है ना, क्योंकि आज 40 साल 50 साल से वो जनता वहां पे झुग्गी झोपड़ी में, मतलब एक गलीच बस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही है, नरक की जिंदगी गुजार रही है। वो भी चाहते हैं कि भाई एक अच्छा घर बने, अच्छा मकान मिले, है ना।
हमारी बच्चियों के सर पे एक अच्छा मतलब छत मिले। लेकिन उनका एक ही कहना है कि भाई बिल्डर जो भी आए वो हमको विश्वास में, तो सोसाइटी के साथ में बैठ के बात करे। 32 सोसाइटी है ना, अगर उनके साथ में 10-12 सोसाइटी चली गई है तो 20 सोसाइटी है, उनके साथ में बैठ के बात कर लो। आप डायरेक्ट बैठ के बात कर लो, उनको विश्वास में लो, उनसे एग्रीमेंट कर लो, जीबीआर ले लो, कितना टेनेमेंट्स है और आगे बढ़ जाओ। टेनेमेंट्स कितना है, कितना देख रहे हैं हम लोग टेनेमेंट्स? लगभग 4000 से ज्यादा टेनेमेंट्स है वहां पे। 4000 प्लस टेनेमेंट्स। यस। So that means we are looking at around 20,000 people. और ज्यादातर लोग विरोध में हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ज्यादातर लोग विरोध में हैं। जो उनके साथ में गए थे, सुनिए, जो आज उनके साथ में कुछ लोग गए थे, उनमें से भी कई सोसाइटी के लोग आज आकर हमको मिले, मुझे भी मिले वहां पे, कि भाई ये हमारे साथ में गलत हो रहा है, हमको अंधेरे में रख के काम होने जा रहा है, हमको तो कहा गया था कि आपको यहीं पे घर बना के दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी लिख कर दिया नहीं जा रहा है, तो हमारे साथ में मतलब धोखाधड़ी हो रही है, आप हमारी मदद कीजिए, ये बातें हो रही है। तो आपका क्या 32 सोसाइटीज है वहां पर? जी 32। और 32 तो इसका क्या कन्फेडरेशन बनाने वाला है कि कैसे इंडिविजुअल एक एक सोसाइटी से डील करेंगे वो? ऐसा है ना प्रदीप जी, देखिए 32 सोसाइटी है, उसका या तो एक फेडरेशन बनता है ना, नहीं तो इंडिविजुअली हर सोसाइटी का आप कंसर्न एग्रीमेंट करते हो, हर सोसाइटी का अलग से जीबीआर होना चाहिए, और जीबीआर जो होना चाहिए वो एआर के सामने होना चाहिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सामने होना चाहिए, बिल्कुल, या उसका जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ऑफिस से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसके सामने होना चाहिए, उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो शूटिंग होता है ना, और बिल्डर का अपॉइंटमेंट होता है। ऐसा कहीं हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो दिखा देवे सामने। अगर ऐसा होता, आप मुझे बताइए ना, जो जनता उनको कंसर्ट एग्रीमेंट देती है, इस तरीके से वो कंसर्ट होता है उस समय, अपॉइंटमेंट का मतलब है कि उन्होंने कंसेंट दे दिया है। अगर कॉमन कंसेंट दिया होता तो आज ये पब्लिक रास्ते पे उतरती क्या? ये नहीं उतरती। तो मतलब पब्लिक के साथ में धोखा हो रहा है। तो इसी क्षेत्र में, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमवीए के भावी मुख्यमंत्री भी है प्रोजेक्टेड, उद्धव जी ठाकरे जी। उद्धव जी प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री है, और बहुत सारे आदित्य ठाकरे जी जो प्रोजेक्टेड मंत्री भी है। तो ये सब दिग्गज नेता इसी क्षेत्र के हैं, तो इनके नॉलेज के बगैर यहां कोई भी काम संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या नहीं आपको लगता है कि अनिल परब जी माना जाता है कि बंगले से बहुत क्लोज है, उद्धव जी से बहुत क्लोज है, और जब वो खुद आपके फोटो में दिख रहा है कि मीटिंग लेते हुए, तो डेफिनेटली उद्धव जी का भी समर्थन है इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज तो ये मैं नहीं कह सकता कि समर्थन है या नहीं है, तो ये मैं तो नहीं समझ सकता, इसके बारे में आप पता लगा लीजिए। और अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि मतलब उद्धव जी ने इसका संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए। दुरुस्त बात। ये इंस्टीट्यूट का गारंटी कहां से मिलेगा आपको? इंस्टीट्यूट आपका सबसे महत्व इंपॉर्टेंट चीज है कि 4000 टेनेमेंट को आपको वहीं पर बसाना है, वहीं पर बसाना है। तो क्या आपको तकलीफ कहां दिख रहा है? तकलीफ, डर, भय, ये कहां पर आ रहा है अन्य देशमुख जी? तकलीफ देखिए ऐसा है ना, जहां तक मैं समझता हूं ये बांद्रा ईस्ट है ना, बांद्रा ईस्ट है। भारत नगर तो इन्होंने उजाड़ना शुरू कर दिया। भारत नगर में भी 33-5 का खेल चालू है, 33-10, 33-5 वाला खेल अलग से चल ही रहा है वहां पे, भूतपूर्व डेवलपर के नाम से भूतपूर्व है ना, वो वहां पे एक खेल अभी चल रहा है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको स्टे मिला हुआ है। वो भारत नगर तो उजाड़ने के लिए इन पे लगे हुए हैं। यहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर जो है बड़ा डेवलपमेंट है, हाईकोर्ट यहाँ पे आ ही रहा है बांद्रा ईस्ट के अंदर, गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर 35 एकड़ पे मतलब गवर्नमेंट मतलब हाईकोर्ट ला रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ बांद्रा ईस्ट के अंदर। तो ये सोचते होंगे ये स्लम है, गरीब लोग हैं यहाँ पे, इनको आसानी से हम उजाड़ के फेंक देंगे और यहाँ पे कोई कमर्शियल हब लाएंगे। ये प्लानिंग है इसकी पीछे, साजिश है इनकी। लेकिन मैं आपको कहता हूं इनकी साजिश में इनको कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे। देखिए कोई साथ दे न दे, लेकिन आम आदमी पार्टी इस जनता की, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ते रहेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज अभी रात में भी मीटिंग है लोगों की, उसके बाद में हम मोर्चा निकालेंगे सीओ के ऊपर, सीओ से बात करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था अगर ये नहीं मानेंगे तो यहाँ पे सामूहिक आत्मदहन की बात करेंगे लोग।
तो ये पूरे बीकेसी एक्सटेंशन, ये पूरे क्षेत्र जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन होने वाला है। यहां पर आपने कहा हाई कोर्ट आने वाले हैं, बांद्रा स्मार्ट सिटी आ रहा है, तो ये डेवलपमेंट जोन हो गया है, इसमें कोई गरीब लोग नहीं रहेंगे, ये डर है आपको। नो इन सिटू डेवलपमेंट वेयर द पुअर पीपल आर कंसर्न्ड, इनको बाहर डालेंगे मुंबई लिमिट्स के बाहर। जो अडानी जी के प्रोजेक्ट्स में जो चल रहा है कि मुलुंड डंपिंग ग्राउंड को ले लिया, आधा को उसमें भेज देंगे, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस में आपको डर है that there is not going to be no in situ for the developer for the people of Bandra East। यहां पर नहीं रहेंगे अभी बांद्रा ईस्ट में। नहीं, बिल्कुल सही, ये इनकी यही प्लानिंग है। मैं तो उसके आगे जाके कहना चाहता हूं, अभी परसों ही मैंने सुना कि ये अदानी को बांद्रा ईस्ट में 45 एकड़ रेलवे की लैंड भी चाहिए जी। अरे हाँ, 45 एकड़ जो है वो अदानी को लैंड चाहिए, बांद्रा ईस्ट में जो रेलवे की लैंड है वो भी चाहिए। अरे पूरा देश बेच दिया आपने मोदी जी, पूरा देश बेच दिया, गरीबों को तो छोड़ो। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं महमूद देशमुख साहब, अभी चुनाव आने वाले हैं, असेंबली के चुनाव आने वाले हैं, क्या आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा सर? सर अभी आपको आवाज आ रही है? आ रही सर। चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शंस जी। अक्टूबर में हैं जी। क्या जो स्थानीय राजनीतिज्ञ हैं और जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं, उनको मालूम नहीं है कि इन्हीं लोगों के पास इनको वापस जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए? क्योंकि मेरी पूरी बात सुन ले सर, आप इनको यहां से शिफ्ट करना चाहते हैं मुलुंद के कचरे के ढेर में। डंपिंग ग्राउंड क्या है? कचरे का ढेर है ना। तो मतलब ये लोग जो हैं वो कचरा है? पूछ रहा हूं आपसे सर देशमुख साहब। इनकी नजर में तो यही है सर। एक बात बताओ मैं आपको, इनका वोट लेने के समय तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। मैं आज वही देख रहा था, सुबह से मैं वहां पे था, कोई एक नेता यहां पे नहीं आया। ये जो चुने हुए नेताओं की बात करते हो ना आप, ये नहीं आए। तो क्या ऐसा है कि जिसे सोशल बॉन्डिंग कहते हैं वो इनके पास नहीं है। ये इनको पैसे का घमंड है, और ये नाम के लिए लोकतंत्र है ना, ये भी ये उसी का हिस्सा बने हुए हैं। आज ये भी बिजनेसमैन के पार्टनर बने हुए हैं, ये भी अदानी अंबानी के पार्टनर बने हुए हैं। दुर्भाग्य क्या है, इस देश के अंदर अगर जनता पे अन्याय होता है तो जनता किसके पास जाती है? चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाती है। और जब चुना हुआ प्रतिनिधि ही बिक जाता है तो फिर लोग हताश हो जाते हैं, लोग किसके पास जाए? आज लोगों की परिस्थिति ऐसी गंभीर हो गई है कि आज लोगों के पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लोग किसके पास उम्मीद से देखेंगे? आप मुझे बताइए ना। वोट जाने की उनकी ताकत नहीं होती है, वो एक लोक प्रतिनिधि के पास से उम्मीद करता है। लेकिन अभी कल चुनाव आ जाएगा तो यही लोक प्रतिनिधि फिर आ जाएंगे। फिर दुर्भाग्य इस बात का कि ये पैसे का, इनको ये लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम पैसा देंगे और फिर जीत के आएंगे। अभी तक तो ऐसे ही जीतते आ रहे हैं सर, अभी तक तो ऐसे ही जीतते आ रहे हैं। यही तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य है जी। यही लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। लेकिन मैं समझता इस वक्त ऐसा है कि बांद्रा ईस्ट के अंदर तो भी मतलब ये घमंड लोगों का, ये इन नेताओं का घमंड तोड़ा जाएगा। बट जनता जो है इनको इनकी जगह दिखाए बगैर नहीं रही। लेकिन आप जबरदस्त काम कर रहे हैं महमूद देशमुख साहब, मानना पड़ेगा। आपने लड़ाई नहीं छोड़ी है, आपने जंग जारी रखी है, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। और अभी भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मीटिंग के बाद हमको जरा थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे कि क्या हुआ मीटिंग में, जरा बता दीजिएगा। और फुटेज भी भेज दीजिए, फुटेज भेज दीजिए मीटिंग की, सो दैट वी कैन कैरी इट इन आवर शो टुमारो, यानी कल के शो में भी हम लोग कैरी कर सकें उसको। लेकिन हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, याद रख लीजिएगा। आप अकेले नहीं हैं जी, धन्यवाद। आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा महमूद देशमुख साहब। बस मैं यही चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास जाए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पास जाए। ये महाराष्ट्र है, देखिए कल तक हम लोग को एक फक्र करते, गर्व कहते थे, एक पुरोगामी राज्य है महाराष्ट्र जो है, ये पुरोगामी राज्य है। महाराष्ट्र में जंगल राज नहीं होता, लेकिन आज मैं कहता हूं कि मुंबई शहर के अंदर एक जंगल राज चालू हो गया है। माफिया, बिल्डर माफिया जो हावी हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? मतलब ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनका समर्थन है, या जो लोग चुने हुए लोक प्रतिनिधि है, ये उनको सब समर्थन देते हैं। बिल्डर ही सत्ता में आ गए सर, आजकल तो बिल्डर ही सत्ता में आ गए। बिल्डर ही सत्ता में आ गए, बिल्कुल सही बात। चलिए उस विषय के बारे में कल या परसों बात करेंगे सर, लेकिन आप अपनी जंग जारी रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। महमूद देशमुख साहब, जय हिंद,
बहुत बहुत जय शुक्रिया हिंद सर, जय आपका हमारे जय साथ हिंद, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Yes. Oh. Oh dear, it's not nice to be poor. Let's be very clear. You're exploited from all sides. Now, if this continues, are we looking towards a big revolution? Because आपने जो बोला कि मंत्री भी बिल्डर हो गए, अरे हर एक कोई बिल्डर हो गया सर, जितने एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, सब बिल्डर हो गए। और बिल्डर ही अभी मंत्री है, और बिल्डर ही अभी मंत्री हैं और पालक मंत्री भी हैं। पालक मंत्री भी है। तो मतलब क्या है? और जैसे आप बोलते हैं प्रदीप जी, इंसाफ के लिए कोई जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? खैर उसके बारे में